Hello, friends. Are you looking for a place where you can spend a weekend in the lap of nature's unbound beauty and participate in some engaging fun activities? If so, Rajmachi Fort has to be in your bucket list for next holiday trip. The historical fort, dating back to the time of the great Maratha ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj, is located in the lush green Sahyadri range and is one of the most sought after trekking destinations in Maharashtra, where you can experience nature at her varying modes. The trekking trail to Rajmachi Fort abounds several waterfalls, deep gorges and valleys, quaint villages, waterways and many more to feast your eyes on. To get a first-hand experience of this amazing trek, you should have a fair know-how of the place and the pros and cons of Rajmachi Fort trek. Rajmachi Fort trekking gives you a unique tour experience through the most pristine, unspoiled trails of Maharashtra. Located in the Karjat region in the Sahyadris, the ancient fort can be reached via two ways. One is along the Kondiwadi village, which is the less traded route, and the other most accessible route is from Lonavala, which offers you wonderful experience of sightseeing along your journey. Atop the ancient Rajmachi Fort, which dates back to the 17th century, you can enjoy panoramic view of Borghat and its surroundings. The Rajmachi Fort is located in the middle of the Mumbai-Pune highway and is connected by road and rail network with the major cities of India. The best time to visit Rajmachi Fort is between the months of June to September, when monsoon sets in full swing and the entire region takes on a mystic charm, being drenched in rain. Monsoon sets in Rajmachi in June and continues through September. Temperature ranges between 24 to 29 degrees Celsius and the entire landscape is covered under a blanket of greenery. Winter in Rajmachi is quite pleasant, and being a dry season, it is convenient to walk along the forest trails. Winter is also the perfect time for outdoor camping and stargazing, where the outside temperature comes down to 17 degrees Celsius. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। ये है राजमाची फोर्ट। ये लोनावला में है, पुणे के पास, लोनावला सिटी के से एकदम पास में है ये फोर्ट। तो आइए इस फोर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे आज। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं गणपति मारुति का ये मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी, और यहीं से लगभग थोड़ी सी यहाँ से तटबंदी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बोर्ड है राजमाची फोर्ट तटबंदी। तो आइए देखते हैं, चलते हैं इस नई जगह को एक्सप्लोर करने। ये है मेरे पीछे फोर्ट, जहाँ तक हमें जाना है। तो अभी थोड़ा 2-1 किलोमीटर का रास्ता है। काफ़ी ऑफ रोड है ये, बहुत मुश्किल रोड है ये ऑफ रोड बाइक के लिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं टॉप पे। तो ये हमने अभी इस ट्रैक की स्टार्ट कर दी है। ये देखिए पूरा घना जंगल ही जंगल है, यहाँ पे दोनों तरफ से जंगल है। लगभग 1 घंटे का ट्रैक रहेगा ये शायद। देखते हैं, यहाँ तो ठीक से सड़कें बनाई हुई है, पत्थरों की सड़क है यहाँ पे। ये देखिए
दोनों ही तरफ जंगल ही जंगल है। मस्त है। ये फोर्ट यहाँ पे, यहाँ पे। ये भी कुछ केव्स जैसा लग रहा है मुझे। काफी शांतता है यहाँ तो, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है यहाँ पे। ये प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों के कुछ अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इन लंबी लंबी और बड़ी सीढ़ियों से आपका इस ट्रैक पर स्वागत होता है। मंत्र मुग्ध कर देने वाली ये पहाड़ियाँ आपके ट्रैकिंग के अनुभव को और भी अधिक खूबसूरत कर देती है। और ये हल्की हल्की बारिश भी आ चुकी है अभी, तो मौसम भी काफ़ी सुहाना हो चुका है अभी। ये देखिए मेरे पीछे ग्रीनरी, और यहाँ पे है तटबंदी, किले की तटबंदी। तो अब धूप बिल्कुल नहीं है, बादल है ऊपर घने। चलिए चलते हैं आगे। अभी थोड़ा थक गया हूँ तो यहाँ बैठा हूँ मैं बीच में। मौसम तो काफ़ी सुहाना हो गया। देखिए बिल्कुल धूप नहीं, सिर्फ बादल ही बादल, घनघोर बादल, और हरियाली है चारों तरफ। और ये मेरे पीछे यहाँ पे किले की तटबंदी, काफ़ी नज़दीक तक तो वैसे आ चुका हूँ मैं। तो अभी और कितना बाकी है। यूँ तो ट्रैकिंग का शौक हर किसी को होता है, लेकिन इसके लिए बेस्ट जगह तलाशना बेहद मुश्किल है। अगर आप भी ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं तो अपनी सूची में इस राजमाची फोर्ट का समावेश जरूर करें। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अपना सफर तय करते हुए हम इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। हम शहर की चिलचिलाती गर्मी को पीछे छोड़ आए हैं और यहाँ की सर्द हवाएं शरीर से संचार करते हुए मन को प्रसन्न कर रही हैं। यहाँ का बदलता मौसम और हवा की ठंडक और नमी आपकी सारी थकावट दूर कर देती है। इन पहाड़ों पर हल्की सी बारिश और कोहरे की सफेद चादर ने मन को मोह लिया है। जंगलों से घिरी ये पहाड़ियाँ और बादल से बरसती हुई बूंदों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये पेड़ और बादल आपस में बातें कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्रेंस पार करके एक
बेस तरंग आ गई। लेवा का जो झंडा रहता है वो ऊपर है, अभी थोड़ा हम और ऊपर जाएंगे। यहाँ से देखिए कितना सुहाना मौसम है, ये फॉग ही फॉग है सब तरफ। एकदम से अचानक मौसम चेंज हुआ ये पूरा। पहले सुबह बहुत धूप थी और अब चारों तरफ फॉग ही फॉग और हरियाली। बेहतरीन मौसम है ये ट्रैकिंग के लिए। तो इस मानसून मौसम का ये फर्स्ट ट्रैक है मेरा, ये राजमाची फोर्ट का। तो आगे भी आपको ऐसे बहुत से मानसून वाले ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए आगे टॉप पर चलते हैं। ट्रैक तो वैसे इजी है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा थक गया हूँ। अगले आने वाले कुछ ट्रैकों में शायद इतना ना थकूँ मैं। बोला ना 2 लोग और मिलेंगे। क्या बोलते हैं? अरे और लगा। और हर बार की तरह इस स्पॉट पे भी मुझे यहाँ पे एक अपना दोस्त मिल गया है, ये है कुणाल मोरे। और कर दे हाय कर दे। हाय, ये भी आने वाला है एक वीडियो में। हाँ, ये भी आने वाला है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये एक बौद्ध गुफा है। ऐसी लगभग 16 बौद्ध गुफाएं इस किले पर मौजूद हैं। राजमाची किला श्रीवर्धन और मनोरंजन ऐसे 2 किलों से मिलकर बना है। इस किले को श्रीवर्धन किले के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र स्तर से 3250 फुट की ऊंचाई पर है। इस किले को इन पहाड़ियों के ऊपर के पठार पर बनाया गया है। पश्चिमी घाट की शानदार पहाड़ियों में स्थित राजमाची एक ऐतिहासिक किला है। यह शानदार किला शातवाहन राजवंश द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने मौर्य समाज के पतन के तुरंत बाद अपना राज्य स्थापित किया था। इन्होंने ईसा सन 230 पूर्व से शांतिपूर्वक भारतीय प्रांत पर शासन किया। यह बोर घाट पर नजर रखने के लिए एक रक्षात्मक किले के रूप में खड़ा रहा। वर्ष सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ युद्ध करके इस किले को जीत लिया था। 1818 में मराठा शासन खत्म होते ही इस पर पूरी तरह ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। भारत की आज़ादी के बाद इस किले को प्राचीन विरासत स्थल और महाराष्ट्र में एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया। लगभग पूरे टॉप तक आ चुके हैं हम, और यहाँ मेरे पीछे है भगवा झंडा। मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व रखता था। जब मुगल दक्कन की ओर बढ़ रहे थे, तब अहमदनगर तथा बीजापुर में मराठे प्रशासन तथा सैनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, तथा राज्य के कामकाज में उनका प्रभाव और उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। दक्कन के सुल्तानों तथा मुगलों दोनों ने मराठाओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की। मलिक अंबर ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मराठाओं की भर्ती की। यद्यपि मोरे, घटगे तथा निम्बाळकर जैसे कुछ प्रभावशाली मराठा परिवारों ने कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव कायम कर लिया था, तथापि मराठे राजपूतों की तरह बड़े तथा सुसंगठित राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शहाजी राजे भोसले तथा उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। जैसा कि पता चलता है कि कुछ समय तक शहाजी राजे ने मुगलों को चुनौती दी। अहमदनगर में उनका प्रभाव था कि शासकों की नियुक्ति में भी उनका ही हाथ होता था, लेकिन सन 1636 की संधि के अंतर्गत शहाजी राजे को उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा जिन पर उनका प्रभाव था। उन्होंने बीजापुर के शासक की सेवा में प्रवेश किया और अपना ध्यान कर्नाटक की ओर लगाया। उस समय की अशांत स्थिति का लाभ उठाकर शहाजी राजे ने बेंगलोर में अर्धस्वायत्त राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। इसके पहले गोलकुंडा का एक प्रमुख सरदार मीर जुमला कोरोमंडल तट के एक क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करने में सफल हो गया था। इसके अलावा कुछ अबिसिनियाई सरदार पश्चिमी तट पर अपना शासन कायम करने में सफल हो गए थे। पूना के आसपास के क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने के छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयासों की यही पृष्ठभूमि थी। अब ऊपर से आए हैं हम नीचे यहाँ पे एक माची है, यहाँ पे ये देखिए, जिसे बुरुज भी कहते हैं।
यहाँ पे, तो वहाँ जाएंगे अभी हम। बहुत छोटा ट्रैक था तो बहुत मज़ा आया। 1 घंटे में लगभग हम टॉप तक पहुँच चुके थे। 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है 20 मिनट से ऊपर तक आने में। लगभग 40 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं। तो अभी बारिश तो इतनी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा इतनी हरियाली अभी नहीं है, लेकिन मानसून में 1-2 बारिश होने के बाद यहाँ पे काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाता है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये फोर्ट। सो मेंटेनेंस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत है जो होना चाहिए, बेसिक्स। और ये हमें मिल गया ये रास्ता, यहाँ से शॉर्टकट मारा है हमने छोटा सा एक। यहाँ पे पीने के पानी की जो टंकियाँ रहती है वो भी यहाँ पे काफ़ी है फोर्ट्स पे। तो पुराने ज़माने में यहाँ पे पानी की भी काफ़ी अच्छी सुविधा थी। और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से पर्वतों की मालाएं हैं यहाँ पे। चारों तरफ पर्वतों की माला, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ ये फोर्ट। तो एक अच्छा ट्रैक है ये मानसून के लिए, आप आ सकते हैं यहाँ पे। एक शॉर्टकट ट्रैक है ये, बहुत शॉर्ट में आपका यहाँ पे एक ट्रिप हो जाएगी बहुत अच्छे से। जो पहाड़ी है यहाँ पे जब तेज़ बारिश होती है तो यहाँ से झरने बहते हैं, बहुत से छोटे छोटे झरने बहते हैं। तो यहाँ से जो व्यू होता है वो भी एकदम परफेक्ट व्यू होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। मानसून में ही इस किले पर आप ज़रूर आइए बारिश के बाद, जब एक हैवी रेनफॉल हो जाए तो उसके बाद का व्यू जो है यहाँ पर एकदम सुपर व्यू रहता है। तो आइए, हम माची के पास तक तो पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं माची की ओर। और ये माची के बिल्कुल पास तक पहुँच चुके हैं। तो आपको यहाँ का सिनेमैटिक व्यू दिखा दूँगा मैं, तो एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स व्यू यहाँ के। ये पहुंच चुके हैं हम इस माची पे। तो ये जो है ये एक वॉच टावर की तरह काम करता था। यहाँ से आए वॉच रख सकते थे। ये देखिए किस तरह का व्यू आता है, यहाँ से आपको नीचे का पूरा व्यू देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे किले के साइड में तटबंदी बनाकर इस पर एक माची बनाई जाती है, आप हम बोल सकते हैं बुरुज बनाया जाता है। वो देखिए वहाँ गए थे हम टॉप पे, उस टॉप से हम यहाँ आए नीचे माची पे, और वो हम वापस जाएंगे नीचे की ओर, अपना रुख करेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।
बिल्कुल किले के तटबंदी पर चल रहा हूँ मैं इस वक्त। ये देखिए कितनी पतली सी तटबंदी है ये। और इस ओर खाई है और इस ओर भी जंगल है, काफ़ी गहरी खाई है इस ओर। चलते रहेंगे आराम आराम से, तो सब पास ही है एग्जिट। ये देखिए यहाँ पे भी हमें पानी की टंकी देखने को मिली है, यहाँ पे कि पत्थरों में ही कोरी हुई है। पूरी तटबंदी है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, पूरी की पूरी तटबंदी है। देखिए अभी सोरो में जाना है, तो यहाँ का व्यू देखिए। और ये हो चुका है हमारा ट्रैक कंप्लीट। यहाँ से हम गए थे ऊपर वहाँ टॉप पर जहाँ पे फ्लैग था, उस फ्लैग को करके हमने वहाँ पे माची किया। तो वहाँ से हम इस ओर से हम यहाँ आए। तो यहाँ होता है हमारा ये ट्रैक ख़त्म। कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।